Hello friends, this is Quality Improvement in Maths Education Project. Myself, Prashant Digambar Sakhare. My registration number is B064 and I am working at Mathusri School Kamta, district Gondia. And my topic is linear equations for video based PPT presentations. हम देखेंगे कि linear equations जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है और जहाँ जहाँ अननोन वैल्यूज है वहाँ हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इस पर से हम कह सकते हैं कि इन द लीनियर इक्वेशंस यूज वन और मोर वेरिएबल्स और वन वेरिएबल्स इज डिपेंडेंट ऑन द अदर्स while most students learns about linear equations in a classrooms and they can be applied outside the school in the real world. Almost any situations where there is an unknown quantity can be represented by linear equations. Linear equations can be used to represent variable cost, rates, budgets, entries and numerical prediction etc. इस इंट्रोडक्शन पर हम देखेंगे कि हर जगह जहाँ अननोन क्वांटिटी होती है वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लीनियर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और इन लीनियर इक्वेशन के माध्यम से हम किसी भी अननोन वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो और जानते हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में ज़्यादा। दिस इज और टास्क ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर। यहाँ हम एक्टिविटी ले रहे हैं। इस एक्टिविटी में 4 वुडन स्टिक्स ले रहे हैं जो स्टूडेंट्स को देंगे और स्टूडेंट्स उसमें एक पर एक रख के देखेंगे कि इनकी लेंथ इक्वल है, छोटी है, बड़ी है और उस पर से वो डिसाइड करेंगे कि ए इज, तो देखेंगे वो जब मेजर करेंगे तो कि ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी एंड ए इक्वल टू बी। ये एक्टिविटी लेने का पीछे मकसद है हमारा कि बच्चे इक्वेशन से थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। इस पर से जानेगा कि जब बोथ साइड्स इक्वल आती है तब हम वहाँ इक्वेशन का साइन मतलब इक्वल टू लगाते हैं। दिस इज द एक बेसिक डेफिनेशन। इक्वेशन मीन्स इक्वल एंड दिस इज द नोटेशन ऑफ इक्वल टू। और यहाँ पर एक चीज़ ये 2 पेन दिखाए गए, जब वो सीधे हॉरिजॉन्टल में है इसका मतलब बोथ साइड जब इक्वल है तब हम उसको एक इक्वेशन की संज्ञा दे सकते हैं। नाउ ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर। सेकेंड टास्क देखेंगे हम कि एक वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक प्लेफुल वातावरण में हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना, इक्वेशन कैसे बनाना और हम उसको एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। What's wrong? You look depressed. Oh, I don't know. I just don't know what I am when I'm crying. Then let's go to the playground playground. So this is a playground playground? Yeah. And we're going to empty seesaw, put you on one side, and get something else, and put it on the other. Too heavy. Sorry. Add some more. Ooh, it's equal. Now we can figure out the value. There are too many numbers. या देखेंगे किस तरह से उन्होंने डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किए। कभी ग्रेटर होता था, कभी स्मॉलर होता था, लेकिन किस तरह से उन्होंने इक्वेशंस बैलेंस के डिफरेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करता था। Figure it out. Yeah, we can. If we do it step by step and use a pencil. So let's get started. One thing we can do is add these two together. How do you do that? You have to be budget. You don't have to be. How do you do it if you were a budget? Yeah, we can also put these together. Oh, wouldn't it be 11 because 8 plus 3 is 11? No, because 3 together is 8 and minus 2 or negative 2. So it's 5. Oh, I see something. We can add these. Yes, why did that happen? Because the 2 is connected to the 3 plus x. Oh, so? Just like adding apples and oranges. You can. So what do we do? Okay, see the 2 times 3 plus x? No, that's the same as 2 times 3 plus 2 times x, which is 6 plus 2x. Oh, and 5 plus 6 is 11. Yeah, now we have to move it around. We have to move this 2x to this side. Oh, so 5 plus 5
whenever you switch signs, you have to switch its sign. So if it's positive, it turns negative, and vice versa. Wow! Think of it this way. You're subtracting 2x from each side. Oh! Just move it. Correct. Now you're saying with me. 4. 1 plus 4 is 7. So now what's my rule? Let's put it back to it. Oh! X is 7, so I'm 7. इस वीडियो में हमने देखा कि कैसा सिंपल इक्वेशन जो वन एरिया वाला इक्वेशन था, वन ऑर्डर वाला इक्वेशन जो था, इस तरह से प्लेफुल तरीके से इसको सॉल्व किया गया। अब हम देखते हैं कि एक नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इस इक्वेशन को हम इसका ग्राफ के माध्यम से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमने देखे कि इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए पहले 2 3 3 2 एंड 1 4 जियोजेब्रा, और जियोजेब्रा की मदद से हमने उसका ग्राफ बनाया। ये ग्राफ जब बच्चे देखेंगे, विद्यार्थी देखेंगे, तो ये दिखेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। नाउ वी टेक सेकेंड इक्वेशन, ड्रॉ अनदर ग्राफ ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ हमने इक्वेशन लिया x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 7। इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए 2 3 3 -2 -2 3, और जब हम इसका ग्राफ निकालेंगे तब इसका ग्राफ जो है वो एक लाइन नहीं बनता, और इस पर से तब स्टूडेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो इसके स्टूडेंट को यह ऑब्जर्वेशन शीट दी गई और उस पर से उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लाइकली टू बी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी। फर्स्ट, स्टूडेंट रिकॉग्नाइज एंड गिव एन आंसर a is less than b, a is greater than c and a equals to b। इस एक्टिविटी पर से स्टूडेंट समझेंगे व्हाट इज इक्वेशन, एंड फ्रॉम टास्क 2 स्टूडेंट्स नो हाउ इक्वेशन फॉर्म्स एंड हाउ टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x प्लेफुली। फ्रॉम द टास्क 3 स्टूडेंट्स गॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। दूसरे टास्क से देखेंगे कि विद्यार्थी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। फोर्थ टास्क से देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 7 का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, जिससे ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इक्वेशन लीनियर हो सकता है, कौन सा इक्वेशन नॉन लीनियर हो सकता है। नाउ फ्रॉम द अबव 4 एक्टिविटीज वी टेक अनदर एक्टिविटीज फॉर देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। Here, a taxi company charges a ₹3 boarding rate in a meter, which is ₹2 for every mile। ये क्वेश्चंस हैं, इस पर से 4 आंसर्स निकालना अपने को। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू राइड इन द टैक्सी फॉर 1 मिनट, फॉर 2 मिनट, एंड व्हाट्स इक्वेशन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ दिस कंपनी। इसका इक्वेशन किस तरह से बनेगा और इसका ग्राफ किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम जानेंगे कि हमारी जो 4 एक्टिविटी हमने बताया तो इस तरह से स्टूडेंट को इतनी समझ में। नाउ ये 4 एक्टिविटी पर से वो ये भी देखा गया कि नॉन लीनियर किसे कहते हैं, और एक्चुअल में लीनियर की डेफिनेशन फिर इसको पता चलेगी, और ये डेफिनेशन इस तरह से आ सकती है। ए लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच ईच टर्म इज आइदर ए कांस्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट and the first power of a single variable, that is ax plus by plus c equals to 0. This is the general form of linear equation. While graphing, we concluded that an equation that makes a straight line when it is graph. जब किसी इक्वेशन का ग्राफ फाइंड करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आता है तो हम उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ज़्यादा ऑफन अराइज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस b, m where m is the slope and b is the y-intercept. Now we take system of linear equation. एक्चुअल में सिस्टम क्या होता है यह विद्यार्थी को समझना आवश्यक है। A system of equation is a set or collection of equations that we deals with all together at once. जब हम एक से ज़्यादा इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो हम उसे कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे 2 केसेस दिए हैं, दोनों केसेस में एक साथ 2 इक्वेशन को रखा गया, लेकिन एक सिस्टम दर्शाता है और दूसरा नॉट सिस्टम दर्शाता है। हियर एग्जांपल फर्स्ट, a1x plus b1y equal to c1
a2x plus b2y equal to c2. ये इक्वेशन तो both equations are in system, but a1x plus b1y equal to c1 and a2m plus b2n equal to c2. ये इक्वेशन जो है वो सिस्टम में नहीं है. Why? Because both equation have not the same variable. सेकेंड इक्वेशन में एक में x और y यूज किया गया वेरिएबल्स और सेकेंड इक्वेशन में उसी के m और n यूज किया गया, इसीलिए वो सिस्टम में नहीं है. नाउ देखते कि हम कंडीशंस फॉर द कंसिस्टेंट ऑफ द सिचुएशन. यहाँ हम देखते हैं कि विदाउट सॉल्विंग बाय ग्राफ और बाय सॉल्विंग द इक्वेशन we concluded that the solutions of that equation is unique, no solution or infinitely solution. Now see the condition first. Here we take two equations, x minus 2y equal to 0, 3x plus 4y equals 3x plus 4y minus 20 equals to 0. When comparing the coefficient and fraction of the coefficient, we got a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. जब हमको ऐसी कंडीशन मिलती है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ऐसी कंडीशन में हमारा algebraic interpretations have exactly one solution होता है और that is unique. हम इसका ग्राफ भी निकाल के दिखा सकते हैं कि सही में वो इक्वेशन यूनिक और सॉल्यूशन किस तरह से होता है. तो हम जियोजेब्रा की मदद से हम देखते हैं कि उसी इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली डिजाइन करते हैं जियोजेब्रा के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि वन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब द सॉल्यूशन इज 1. नाउ वी टेक सेकंड कंडीशन. हियर 2x plus 3y minus 9 equals to 0, 4x plus 6y minus 18 equals to 0. इस दो कंडीशंस में हम उसके कोफिशिएंट के फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं हम a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. और ऐसे समय में हम algebraic interpretations have infinitely many solutions, और जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो उनकी लाइंस जो है वो कोइंसाइड होती है. नाउ सी हियर, दिस इज द यूज ऑफ जियोजेब्रा. बोथ इक्वेशन हमने सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद हमने देखी कि उस दोनों लाइन का, यहाँ दो लाइनें दिख रही है अपने को, एक ही है क्योंकि कोइंसाइड हो गई है, और कोइंसाइड होने की वजह से ही इसका सॉल्यूशन जो है वो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है लाइन पर, तो वो सबके सब इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड द थर्ड कंडीशन. इफ x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. ऐसी कंडीशन में जब हम उसके कोफिशिएंट के फ्रैक्शन को कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ अपने को ऐसी सिचुएशन मिलेगी a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ऐसे समय में अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होगा नो सॉल्यूशन, और जब हम इसका ग्राफ करेंगे तब उनके लाइंस जो है वो पैरेलल आएंगे. सी हियर, there is parallel lines and there is no point of intersection, therefore have no solution. इस तरह से स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिकली प्रूव भी करेंगे कि उन इक्वेशन का क्यों सॉल्यूशंस नहीं निकलता, क्योंकि बिकॉज देयर लाइंस आर पैरेलल. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मेथड ऑफ solution, yes, solving the examples. Here we take the methods of 9th and 10th of two variables. For two variables, this is the concluding chart of above three conditions. Now methods of solving the linear equation. The first method is eliminating by the equating coefficient. इसमें देखते हैं कि दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है. x plus y equal to 10 and 3x minus 2y equal to 10. यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है. तो सबसे पहले हम इक्वेशन इक्वल करेंगे. यहाँ y के कोफिशिएंट्स इक्वल किए हमने, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए. देन द इक्वेशन बिकम्स 2x plus 2y equals to 20. आफ्टर सॉल्विंग दैट, therefore x equal to 6, there is answer, and by putting x equal to 6 in any of our equations we got y equal to 4, means the solution here is 6 and 4. Now move towards the substitution method. Here x plus y equal to 10, 3x minus 2y equal to 10.
यहाँ पे भी सेम इक्वेशन दिए गए और सेम इक्वेशन लेने के कारण हम देखेंगे कि आंसर भी सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन हमने y की वैल्यू फाइंड किए 10 माइनस एक्स और ये y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 3x माइनस 2 इन ब्रैकेट 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। और हम सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर भी x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा y इक्वल टू 4 मीन्स देयर इज ए सेम आंसर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में डिटरमिनेंट्स का यूज किया जाता है और इस क्रैमर्स रूल के माध्यम से भी हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सेम इक्वेशन लिया हमने x प्लस वाई इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम d का फॉर द फॉर्मूला d निकालने के लिए हमको x और y के दोनों के कोफिशिएंट लेना पड़ता है और इस तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व किए तो हमको d इक्वल्स टू -5 वैल्यू मिली। नाउ फॉर dx x coefficient is changed by constant terms and y terms, y coefficient of y is as it is. Now after solving for dx equals to -30. For the value of dy, x coefficient is as it is and in the place of y coefficient we put constant terms and after solving dy equals to -20 we got. And when putting in the formula for x equal to dx upon d equal to 6 and for y dy upon d equals to 4. In this case also the same value we got, means there is no mistake. Now we prove the equation, now we prove by graphical method the value of that equation is 6 and 4. Here x plus y equal to 10, 3x minus 2y equal to 10. जब हम इसको कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे दोनों के और कोऑर्डिनेट्स निकाल के हम इसका ग्राफ फाइंड कर रहे तो हम देखेंगे कि यहाँ g पॉइंट आ रहा है और g पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और उसके अपन बाजू में आंसर देखेंगे तो वहाँ 6 and 4 लिखा है। तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली प्रूव करके स्टूडेंट को दिखा सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो अभी सॉल्यूशन अगर निकलता है तो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 आएगा और उसको यहाँ पे आंसर हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं 6 and 4। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अप्लाइड इवैल्यूएट। हम देखेंगे कि अभी तक हमने कंडीशंस देखे कि क्या कंडीशंस हुआ इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के लिए। 3 मेथड्स देखे, क्रैमर्स रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग बाय कोफिशिएंट एंड बाय ग्राफिकल मेथड। इन तीनों मेथड्स का यूज हम किस तरह से अपने लाइफ में कर सकते हैं, कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं, इस तरह से हम उन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और ये देखते हैं कि हमने इसको वीडियो बेस में लिया है क्योंकि विद्यार्थी थोड़ा सा क्वेश्चन से बोर हो सकते हैं और बोर ना हो मजेदार तरीके से क्वेश्चन को भी एंजॉय करें, इसलिए हमने इसको भी वीडियो बेस लिया है। यहाँ देखेंगे कि हर जगह लीनियर इक्वेशन का यूज हो सकता है और हम उसको लीनियरली सॉल्व कर सकते हैं। यह एग्जांपल ये है कि 2 प्लेन है और 2 प्लेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो 2400 माइल्स से अपार्ट है और 60 माइल्स पर आवर उनकी स्पीड में डिफरेंस है। दे पास ईच अदर आफ्टर 5 hours फाइंड देयर स्पीड। 2 planes which are 2400 miles apart fly towards each other. Their speed differs by 60 miles per hour. They pass each other after 5 hours find their speed. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखते हैं।
इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ और हमारे को एक वैल्यू मिली। एक प्लेन की स्पीड है 210 पर माइल्स। नाउ वी फाइंड द स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन। It had 27,000 miles on it. And I've owned it for a while now, and every year I drive it about 12,000 more miles. And so what we end up with is a linear equation to represent the situation that looks like y equals. एग्जाम्पल्स इस तरह से लेने का यही मकसद है कि बच्चे को रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको किस तरह से लीनियर इक्वेशन में फ्रेम कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो बेस इसीलिए ले लिया कि विद्यार्थी ध्यान से वो देखेंगे। ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ जिसमें 12,000 जो है वो स्लोप है और 27,000 जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। 12,000 x plus 27,000 because I drive it 12,000 more miles every year. So that's how much the pattern moves by. And the pattern began at 27,000 miles when I first bought the car. So after year 1 it had 39,000, then after year 2 it had 51,000, and after year 3 it had 63,000, and so on and so on. Drawing a graph of this linear equation can help us make a lot of predictions about what this pattern is going to do in the future, and it can also give us a better sense of the pattern that might not be quite so easy to see just from looking at the numbers. When I want to graph a linear equation, I use the y-intercept, the b. यहाँ देख रहे हैं कि इस तरह से ग्राफ भी बनाया जाता है। रियल लाइफ के लिनियर इक्वेशन बनाया जाता है, उसको सॉल्व भी किया जाता है, उसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। ये स्टूडेंट इससे सीख पाएंगे। नाउ वी टेक द सेकंड एग्जांपल which is in gym. This is also a video based problem. Here there is a gym. Quick gym charges ₹100. Memberships fees plus an extra 10 rupees per class. And second is Paris gym charges 30 rupees per class. Here there is no membership charges for Paris gym. या इक्वेशन की वैल्यू फाइंड हुई है p इक्वल्स टू 5। इस तरह से सॉल्व किया गया। इन सब का मीनिंग दिखाया है यहाँ पर कि दिस मीन्स दैट फॉर 5 classes you should choose either gym. The price will be ₹150. If he goes to the gym less than 5 times a month, he should go with Paris gym. But he goes now. Now we take problems. Ticket for a play where 2 rupees for each child and 4 rupees for each adult. One showing of the play, one adult brought 4 child and the adult bought 2 child each. The total ticket sales from the children's and adult was ₹60. How many children and adults attend the play? This is also the real life problems. And next is explain why the graph below would never represent the rate that taxi company charges.
ये जो नीचे ग्राफ दिया गया है इसको से हम बता सकते हैं कि ऐसा ग्राफ क्यों नहीं आएगा जब वो एक्सी कंपनी चार्ज करेगी, ये हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्व वॉलंटियर टू मेक पिज्जा फॉर ए bake sale. She bought cheese and 6 pounds of dough and spent ₹90. After taking food, she decided they looked so good she would make more. She went back to the store and bought 1 more pound of the dough and 5 more pounds of cheese and spent ₹15. Next question is Mike start out 35 feet in front of Kim and they both starts moving towards the right at the same time. Mike moves at 2 feet per second while Kim moves at 3.4 feet per second. How long will it take for the Kim to catch up the bike? ये सभी एग्जांपल्स हमने रियल लाइफ से लिए, रोज हमारे डेली रूटीन में आते हैं एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स बच्चे सॉल्व करेंगे और अपने लीनियर इक्वेशंस को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।